دوستوں کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی بےعزتی بھی کر دیتے ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دے پاتے؟ وہ آپ کو سب کے سامنے نیچا دکھاتے ہیں، پھر ہنس کر کہتے ہیں کہ یار مذاق تھا، تم تو دل پر لے گئے ہو۔ کبھی وہ آپ کی بات کو اتنی بار جھٹلاتے ہیں کہ آخرکار آپ خود ہی سوچنے لگتے ہیں شاید غلطی واقعہ میری ہی ہے۔ اور کبھی دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر آپ کی ہر حد، ہر اصول اور ہر احساس کو ایسا ایسا توڑتے رہتے ہیں جہاں تک کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی عزت نفس کا کتنا بڑا حصہ کھو چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نفسیاتی کھیل کھیلتے ہیں، ایسے کھیل جن کا مقصد صرف آپ کو تکلیف دینا نہیں ہوتا بلکہ ایسا ایسا آپ کے اعتماد، آپ کی سوچ اور آپ کی شخصیت پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہوتا ہے، اور اکثر یہ محبت کے نام پر اور دوستی کے نام پر ہوتا ہے۔ ڈارک سائیکالوجی میں ایسی کئی ٹیکنیکس بیان کی جاتی ہیں جن کے ذریعے انسان دوسرے انسان کو کمزور، غیر یقینی اور جذباتی طور پر اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اکثر لوگ ان حرکتوں کو عادت، مذاق، غصہ یا ایک محبت کا انداز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس بےعزتی کو آپ بار بار برداشت کرتے ہیں وہ دوسرے انسان کے لیے آپ کی طرف سے اجازت بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 7 قسم کی بےعزتیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اگر آپ نے بر وقت نہ پہچانا تو یہ صرف آپ کا سکون نہیں بلکہ آپ کی پوری شخصیت کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہیں۔ آپ رشتوں میں اپنی عزت کھو سکتے ہیں، اپنی ویلیو کھو سکتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ لہذا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ شروع کرتے ہیں پہلی قسم، مذاق کے پردے میں چھپی ہوئی بےعزتی۔ یہ سب سے عام اور سب سے خطرناک قسم ہے کیونکہ یہاں سامنے والا شخص آپ کو برا بھی کہتا ہے اور خود کو بے قصور بھی ثابت کر دیتا ہے۔ فرض کریں آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، کوئی اچانک کہتا ہے کہ اس سے کیا پوچھ رہے ہو، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سب ہنس دیتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں، پھر وہ فوراً کہتا ہے یار مذاق تھا، اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ یہ مذاق نہیں، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے۔ اسے اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ احتجاج کریں تو آپ کو یہ حساس، کمزور یا بد مزاج ثابت کر دیا جائے۔ نفسیات کے مطابق اس طرح کی گفتگو انسان کو اندر سے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہر بار سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، شاید واقعہ مجھ میں کوئی کمی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دوسرا شخص آپ پر نفسیاتی برتری حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو انسان آپ کی عزت کو بچا کر مذاق نہ کر سکے، مزاح نہ کر سکے، وہ دراصل مزاح نہیں بلکہ آپ کی عزت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری قسم، آپ کی حدود کو بار بار توڑنا۔ ہر انسان کی کچھ ذاتی حدود ہوتی ہیں، وہ حدود صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ وقت، جذبات، رازداری اور ذاتی فیصلوں سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ ایک بااخلاق انسان ان حدود کا احترام کرتا ہے، لیکن ایک خودغرض یا کنٹرول کرنے والا انسان انہیں چیلنج سمجھتا ہے۔ یہ لوگ کبھی ایک دم سے بڑی زیادتی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کرتے ہیں، مثلا بار بار دیر سے آنا، بغیر پوچھے آپ کی چیز استعمال کر لینا، آپ کا فون اٹھا لینا، آپ کے ذاتی معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرنا، بار بار ایسے سوال پوچھنا جن کا جواب دینے سے آپ پہلے ہی انکار کر چکے ہوں، یا ایسے سوال جن کا ان کو علم ہو کہ یہ آپ کی طبیعت پر ناگوار گزریں گے۔ شروع میں یہ سب معمولی لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں چلو جانے دو، اتنی سی بات ہے، لیکن یہی اتنی سی بات ایسا ایسا ایک خطرناک عادت بن جاتی ہے، کیونکہ جب سامنے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ ہر بار خاموش رہیں گے تو وہ اپنی حدیں مزید آگے بڑھا دیتا ہے۔ آج وہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، کل وہ آپ کے وقت کے فیصلے کرنے لگتا ہے، اور پرسوں وہ آپ کی زندگی کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف بدتمیزی نہیں، یہ آپ کی شخصیت کو کمزور بنانے کا ایک خاموش عمل ہے۔ اس لیے جو شخص بار بار آپ کی حدود توڑتا ہے اسے صرف سمجھانے کی نہیں بلکہ واضح حد مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری قسم، گیس لائٹنگ، آپ کی حقیقت بدلنے کی کوشش کرنا۔ یہ ڈارک سائیکالوجی کی سب سے خطرناک ٹیکنیکس میں سے ایک ہے۔ اس میں سامنے والا شخص آپ سے جھگڑا نہیں کرتا، وہ آپ کے ذہن سے جھگڑا کرتا ہے۔ وہ بار بار ایسی باتیں کہتا ہے جیسے میں نے ایسا کب کہا تھا، تمہیں غلط یاد ہے، تم ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہو، تم بہت زیادہ جذباتی ہو، تم ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتے ہو۔ شروع میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ درست ہیں، لیکن جب یہی باتیں بار بار دہرائی جائیں تو انسان اپنے ہی ذہن اور اپنی ہی سمجھ پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید واقعہ مجھے غلط یاد ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا شخص آپ کے ذہن پر قابو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تکنیک کا مقصد صرف بحث جیتنا نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ پر اعتماد کھو دیں اور ہر معاملے میں سامنے والے کی بات کو سچ ماننے لگے۔ جب انسان اپنی حقیقت پر یقین نہ رکھ سکے تو پھر اسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ہر اختلاف میں آپ کی یادداشت، آپ کے احساسات یا آپ کی سمجھ کوئی غلط ثابت کرنے لگے تو صرف اس کی بات نہ سنیں،
सुने, अपने मुशाहदे, अपनी अक्ल और अपने एहसासात पर भी भरोसा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ वो नहीं होता जो कोई आपसे बोलता है, बल्कि वो होता है जिस पर वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम खुद गलत हो। चौथी किस्म, आपके जज्बात को बेवकूफ साबित करना। कभी ऐसा हुआ कि आपने दिल की बात किसी से शेयर की और जवाब में उसने कहा, इतनी सी बात पर आप क्यों परेशान हो, या तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये अल्फाज सुनने में आम लगते हैं, लगता है कि वो शख्स आपको हौसला दे रहा है, लेकिन नफ्सियात की जबान में इसे इमोशनल इनवैलिडेशन कहा जाता है, यानी किसी इंसान के एहसासात को ये बावर करवाना कि उसके जज्बात अहम नहीं है, या उसके जज्बात गलत है, या वो जो सोच रहा है वो ठीक नहीं है, या उसकी कोई हैसियत नहीं। शुरू में आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हर बार आपके एहसासात को रद्द किया जाता है तो एक वक्त आता है जब आप खामोश होना सीख लेते हैं। आप अपनी तकलीफ अपने अंदर दफन करना शुरू कर देते हैं, और यही वो चीज है जो एक इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हर वो शख्स जो आपके जज्बात को बार बार कम अहम साबित करता है, उन पर शक करता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। कुछ लोग वाकई जज्बात को समझने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन अगर कोई शख्स मुसलसल आपके एहसासात को मजाक, कमजोरी या ड्रामा करार देता है तो उसका नतीजा एक ही होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने एहसासात पर शक करने लगते हैं, अपने जज्बात को पहचानने में मुश्किल होने लगती है। याद रखें, एक सेहतमंद रिश्ता वो नहीं जहाँ हर बात पर इत्तेफाक हो, बल्कि वो है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद आपके जज्बात की इज्जत की जाए। अगर किसी दोस्त के सामने, किसी मोहब्बत करने वाले के सामने आपको हर बार ये साबित करना पड़े कि आपकी तकलीफ वाकई तकलीफ है, तो मसला आपके जज्बात में नहीं, उस शख्स के रवैये में है। पांचवी किस्म, हर वक्त तनकीद करना और उसे सच्चाई का नाम देना। कुछ लोग कभी सीधी बेइज्जती नहीं करते, वो हमेशा एक खूबसूरत जुमले से आगाज करते हैं, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, या मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। लेकिन अगर गौर करें तो उनकी हर बात का निशाना सिर्फ आप होते हैं। वो सच के नाम पर आपकी बात की तरदीद करता है, उसको कट करता है। आपके कपड़े, आपकी गुफ्तगू, आपकी शक्ल, आपके फैसले, हत्ता कि आपके ख्वाब भी, वो हर चीज में कोई न कोई खामी जरूर निकाल लेता है। शुरू में आप समझते हैं कि शायद वो वाकई आपकी इस्लाह चाहते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आप महसूस करते हैं कि उनकी किसी बात से आपका एतमाद नहीं बढ़ता, बल्कि हर मुलाकात के बाद आप खुद को पहले से कमतर महसूस करते हैं, अपने ख्यालात पर शक करने लगते हैं। यही वो मकाम है जहाँ तनकीद इस्लाह नहीं रहती, बल्कि नफ्सियाती कंट्रोल बन जाती है। क्योंकि जब किसी इंसान को मुसलसल ये एहसास दिलाया जाए कि वो काफी अच्छा नहीं है, उसकी बात अच्छी नहीं है, तो वो दूसरों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में अपनी असल शख्सियत खो देता है। फिर वो वैसी बात करने की कोशिश करता है जैसी सामने वाला पसंद करता है। याद रखें, तामीरी तनकीद आपको बेहतर बनाती है, लेकिन मुसलसल तनकीद आपको अपने आप से मुतनफिर कर देती है। जो शख्स हर वक्त सिर्फ आपकी कमजोरियां देखता है, वो आपकी तरक्की नहीं चाहता, बल्कि अक्सर वो चाहता है कि आप कभी अपने ऊपर एतमाद न कर सकें। छठी किस्म, आपकी मर्जी के बगैर फैसले करना। हर मजबूत रिश्ता एक असूल पर कायम होता है, बामी एहतराम, और एहतराम की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी राय को अहम समझा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा आपकी जिंदगी के फैसले खुद करने लगते हैं। वो आपसे पूछते नहीं, सिर्फ बताते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, हम वहाँ जाएंगे, ये काम ऐसे ही होगा। और अगर आप एतराज करें तो जवाब मिलता है, मैंने तुम्हारी आसानी के लिए किया है। बज़ाहिर ये ख्याल रखने जैसा लगता है, लेकिन अगर ये रवैया मुसलसल हो तो इसके पीछे खतरनाक पैगाम छुपा होता है। तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। वक्त के साथ इंसान अपने फैसले खुद करने से घबराने लगता है, वो हर मामले में दूसरे शख्स की तरफ देखता है, और यही वो नफ्सियाती इन्हिसार है जिसे एक कंट्रोल करने वाला इंसान पैदा करना चाहता है। याद रखें, मशवरा देना मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इख्तियार छीन लेना मोहब्बत नहीं, कंट्रोल है। अगर आपका पार्टनर या कोई इंसान बार बार आपकी मर्जी, आपकी राय और आपके हक के इंतखाब को नजरअंदाज करता है, तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं कर रहा, वो ऐसा आपकी आजादी और खुद मुख्तियारी को खत्म कर रहा है। अपनी जिंदगी के फैसलों में अपनी आवाज को कभी खामोश मत होने दें, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी राय की कदर करना छोड़ दी, उसी दिन दूसरे लोग भी उसकी कदर करना छोड़ देंगे। सातवीं किस्म, बार बार वादे तोड़ना और एतमाद खत्म करना। हर मजबूत रिश्ता एक चीज पर कायम होता है, एतमाद। और एतमाद सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि इंसान की जबान और उसका अमल एक जैसे हों। लेकिन कुछ लोग कभी आपको बुरा भला नहीं कहते, आपसे लड़ते भी नहीं, मगर वो एक ऐसा काम मुसलसल करते हैं जो ऐसा हर रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। वो वादे करते हैं मगर निभाते नहीं। आज कहते हैं मैं जरूर आऊंगा, कल कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँगा, फिर ऐन वक्त पर कोई न कोई बहाना आ जाता है।
शुरू में आप उन्हें माफ कर देते हैं, उन पर यकीन कर लेते हैं, फिर दोबारा भी यकीन कर लेते हैं, फिर दोबारा धोखा खाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप इंतजार करना, उम्मीद रखना, इतबार करना ही छोड़ देते हैं। ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं होती, बार बार वादा तोड़ने वाला शख्स दरअसल आपके ज़हन में मुस्तकिल बेयकीनी पैदा कर देता है। आप कभी नहीं जान पाते कि वो अपनी बात पर कायम रहेगा या नहीं, वो आपके साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और जब इंसान मुस्तकिल बेयकीनी में जीने लगे तो उसकी ज़हनी तवानाई, उसका सुकून और उसका एतमाद ऐसा ऐसा खत्म होने लगता है। याद रखें, गलती हर इंसान से हो सकती है। कोई शख्स अपने वादों पर कभी किसी वजह से पूरा भी नहीं उतर सकता, लेकिन जो शख्स हमेशा एक ही गलती दोहराता है वो सिर्फ गलती नहीं कर रहा, वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप उसके लिए इतने अहम नहीं कि वो अपनी बात की कीमत अदा करे। जिस इंसान के अल्फाज पर भरोसा न रहे उसके वादों पर अपनी जिंदगी तामीर मत कीजिएगा। दोस्तों, अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, इन 7 अक़साम में से कौन सी ऐसी थी जिसे सुनकर फौरन किसी एक शख्स का चेहरा आपके ज़हन में आया? क्या कभी किसी ने आपकी इज्जत को मज़ाक के नाम पर मजरूह किया है? क्या किसी ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि आपने अपने ही एहसासात पर शक करना शुरू कर दिया, या फिर किसी ने बार बार वादे करके आपका इत्मीनान तोड़ दिया? अगर ऐसा हुआ है तो याद रखें, आप अकेले नहीं। दुनिया में लाखों लोग ऐसी नफसियाती चालों का शिकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन 7 में से कौन सी किस्म आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। हो सकता है आपका एक तबसरा किसी दूसरे इंसान की आंख खोल दे और 1 मिनट के लिए आपका खुद का सोचना भी आपको किसी शख्स की असलियत दिखा दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस के जरिए आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात और डार्क साइकोलॉजी के उन पहलुओं को समझें जिन्हें आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद लोगों को दूसरों पर काबू पाना नहीं बल्कि खुद को नफ्सियाती एहसास से महफूज रखना सिखाना है। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अहम बात सिर्फ एक जुमला है, बेइज्जती कभी अचानक शुरू नहीं होती बल्कि आपकी बर्दाश्त से बढ़ती है। जितना आप बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे उतनी ये बढ़ती जाएगी। जो इंसान आज आपकी छोटी सी तौहीन करता है, अगर उसे हर बार खामोशी मिलती रहे, आपकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना मिले, तो कल वो आपकी इज्जत नफ्स तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने दिल की उस आवाज को कभी नजरअंदाज मत कीजिए जो बार बार आपको खबरदार करती है कि ये रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारा ज़हन सच को पहले पहचान लेता है मगर हमारा दिल रिश्ते बचाने की कोशिश में उसे कबूल करने से इनकार करता रहता है। याद रखें, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना गरूर नहीं है, अपनी हदूद कायम करना बदतमीजी नहीं है, और ऐसे लोगों से दूर हो जाना जो मुसलसल आपकी शख्सियत, जज्बात या एतमाद को नुकसान पहुँचाते हैं, नफरत नहीं बल्कि खुद से मोहब्बत है। जिंदगी में हर रिश्ता बरकरार रखना जरूरी नहीं, लेकिन अपनी इज्जत बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी नजर में गिर जाता है उस दिन दुनिया का कोई एहतराम उसे दोबारा मजबूत नहीं बना सकता। लेकिन लोगों के अल्फाज नहीं, उनके बार बार दोहराए जाने वाले रवैयों को देखना शुरू कीजिए। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा अहम यह है कि वो मुसलसल क्या करते हैं। जब आप रवैयों को पहचानना सीख जाएंगे तो कोई भी शख्स आसानी से आपकी इज्जत नफ्स, आपके ज़हनी सुकून और आपकी शख्सियत से खेल नहीं सकेगा। अपने वजदान पर एतमाद करें, अपनी हदूद की हिफाजत करें और कभी भी किसी को ये इजाजत न दें कि वो आपको ये यकीन दिलाए कि एहतराम मांगना आपकी कमजोरी है, क्योंकि हकीकत ये एहतराम कोई तोहफा नहीं है, कोई एहसान नहीं है, बल्कि हर इंसान का बुनियादी हक है और आपका एहतराम भी आपका हक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।